أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. آمنت بالله صدق الله العلي کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے. آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کتنے نانا بھی ہیں اور ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور ان کے نواسے بھی ہیں. ابن حیدر کے نام کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نام کی کیا بات ہے. آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے
اشیاء نیکی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری سلسلہ مشہدیہ سبزواریہ سے پیش خدمت ہوں آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن، آج کی اس روحانی نشست کے ساتھ۔ تو آج کی جو ہماری گفت و شنید ہے وہ اس ٹاپک پر ہے کہ رجت کا شکار لوگ اپنا علاج کیسے کریں۔ یہ لفظ رجت ہے اور رجت بھی ہے، اس کو کچھ لوگ رجت بھی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو رجت بھی پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال رجت کا شکار لوگ اپنے مسائل کا حل کیسے کریں، اس رجت سے کیسے نکلیں، بسم اللہ شریف کے عمل سے رجت کا شکار لوگ بسم اللہ سے علاج کیسے کریں، ٹھیک ہے، یہ آج کی ہماری ویڈیو ہے۔ تو دیکھیں، ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پہلے ہم سیکھیں کہ رجت ہے کیا، رجت کیسے ہوتی ہے، رجت کیوں ہوتی ہے، اور رجت کا بسم اللہ سے علاج کیسے کیا جائے۔ اس سارے چیزوں کو ہم کوشش کریں گے کہ بہت تھوڑے ٹائم میں ہم ان چیزوں کو کور اپ کریں، کیونکہ رمضان کی ویڈیوز کافی لمبی ہو رہی تھیں، اور کافی لمبی ویڈیوز ہونے کی وجہ سے یہاں پر کچھ مسائل ہو رہے تھے۔ تو روزے کی حالت میں اتنی لمبی ویڈیوز کا بنا پانا میرے خیال میں تھوڑا سا مسائل پیدا کرتا ہے، اور سننے والے لوگ بھی اس سے ان کے مزاج پر اکتاہٹ سی ہوتی ہے۔ تو اب ہم نے کوشش کی، پہلے ہم ویڈیوز 1-1 گھنٹے کی ریکارڈ کروا رہے تھے، پھر ہم نے کوشش کی کہ اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے، کیونکہ وہ جو لمبے موضوعات تھے ان کو ہم نے کور کر لیا تھا سٹارٹس کی ویڈیوز میں، تو اب ہم نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے ہم 20 سے 25 منٹ تک ویڈیوز کو لے آئیں، تاکہ شارٹ ٹائم میں ہم اپنی گفت و شنید کو مکمل کر سکیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ فیضان بسم اللہ میں ہم نے کافی ساری اسباق پڑھے، ہم نے کافی ساری چیزوں کو سٹڈی کیا۔ میں نے بسم اللہ کی فضیلت، بسم اللہ کے اعمال، بسم اللہ کی زکوٰۃ اور بسم اللہ کے یوزج، ساری چیزیں آپ لوگوں کو تفصیل سے پڑھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم بسم اللہ سے فوائد کیسے لیں گے، اب محنت کر کے ہم اس کا یوز کیسے کریں گے، میں وہ چیزیں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بسم اللہ ہے، بسم اللہ شریف کی بڑی فضیلت ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے بے شمار نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، شیاطین کو روکا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بسم اللہ قرآن کی ایک آیت ہے، اور بسم اللہ کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے احادیث پاک میں بھی اور قرآن پاک میں بھی۔ اصحاب کرام اور معصومین صحابہ اہل بیت، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقاعدہ طور پر بسم اللہ کی ترغیب ان کی زندگی سے ملتی ہے، اور وہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے لازمی طور پر بسم اللہ کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ رجت کیا ہے، رجت یا رجت کیا ہے۔ دیکھیں، رجت جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ رجت کہتے ہیں الٹا پڑھنا، پلٹنا، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو روحانیت کی دنیا میں سستی شہرت کے چکر میں روحانیت کا سہارا لیتے ہیں، اور روحانیت میں پھر شارٹ کٹ اپناتے ہیں۔ تو اس شارٹ کٹ کی وجہ سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کو کوئی 2-4 پیسے بھی نہ دینے پڑیں، اور کسی کے ہاں جانا بھی نہ پڑے، کوئی سفر بھی نہ کرنا پڑے، ہمیں محنت بھی نہ کرنی پڑے، اور کسی طریقے سے ہم اس وظیفے کو پڑھیں اور 2 منٹ میں پری حاضر ہو جائے گی، 2 منٹ میں جن حاضر ہو جائے گا۔ کچھ لوگ تو ہیں جو جن بیچ بھی رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں انگوٹھی میں، ایک شخص ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ انگوٹھی میں جن بیچ رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ خدارہ ایسے لوگوں سے بچیں۔ ہمارا تو ویسے ہی کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم ولی ہیں یا ہمارے پاس کوئی چیز ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے بھائی، میں اللہ کا نام دے رہا ہوں آپ کو،
मैं गलत हो सकता हूँ, मैं झूठा हो सकता हूँ, अल्लाह सच्चा है, उसका कलाम सच्चा है और उसके वादे सच्चे हैं, ठीक है। और आप इन लोगों से बच जाएं, खुदारा बहुत फ्रॉड हो रहा है ऐसा, आप इन लोगों से बच जाएं। कोई भी चीज़ ऑनलाइन किसी को नहीं दी जा सकती और ये गैर मरई क़ुव्वतें होती हैं, ये ना ही सेंड की जाती हैं और ना ही सेंड होती हैं, और इनके खुद के पास कुछ नहीं होता, झूठ बोलते हैं ये। ऐसे होता तो हर शख्स एक जिन को लिए फिर रहा होता। जिन की हकीकत क्या है और तस्खीर जिन की हकीकत क्या है, इस पर इंशाल्लाह मैं एक तवील गुफ्तगू करने की कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कौन किसके ताबे होता है और कौन कड़ी पाबंदियों में होता है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखें तो जो लोग फिर इस फील्ड में आते हैं वो फिर दाएं बाएं से किताबों से वज़ाइफ पढ़ते हैं, किताबों से वो लोग वजीफ़े लेते हैं, किताबों से वजीफ़ा पढ़ लिया, इधर से पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया। जब वो बुक से वज़ाइफ लेते हैं, बुकों से वजीफ़े लेते हैं, बुकों से जो है ना वज़ाइफ वो लोग लेते हैं, तो फिर उन बुकों से लिए जाने वाले वज़ाइफ की जो हकीकत है वो ये होती है कि जो लोग बुकों से वज़ाइफ पढ़ते हैं, जो लोग किसी से इजाज़त नहीं तलब करते, किसी से इज़न नहीं लेते और ऐसे वज़ाइफ करते हैं, वो लोग फिर गुमराह होते हैं, वो लोग आखिर में बहुत बड़ी गुमराही का शिकार होते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। आज मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमेशा आप जो वजीफ़ा कर रहे हैं उसी शख्स से वो वजीफ़ा लें जिस शख्स ने खुद वो वजीफ़ा किया है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जो आज तक कभी कोई लाहौर गया ही नहीं, वो लाहौर का एड्रेस दे रहा है, वो लाहौर का पता बता रहा है, तो आप कैसे लाहौर पहुँचेंगे। तो खुदारा यूट्यूब से, इधर उधर से, दाएं बाएं की सोशल नेटवर्किंग से आप लोग वज़ाइफ लेकर ऐसे ना पढ़ना शुरू हो जाया करें। उस वजीफ़े को किसी कामिल की निगरानी में, किसी कामिल की देख रेख में उन वज़ाइफ को करें ताकि आपको उन वज़ाइफ का पूरा पूरा फ़ायदा हो, ताकि आपको उन वज़ाइफ का पूरा पूरा नफ़ा हो। मैं एक शख्स मेरे पास आया, उसने बताया कि एक शख्स ने मुझे एक वजीफ़ा दिया, किसी आमिल ने मुझे एक वजीफ़ा दिया किसी बुक से पढ़ के, उसने मेरे सामने ही बुक से पढ़ के किसी को वजीफ़ा उसने मुझे दिया, तो वो वजीफ़ा मैं करने लग गया। वो वजीफ़ा तो मैं यहाँ नहीं शेयर करूँगा। वो कहता उसमें आग जलानी पड़ती थी और आग जला के एक अंडा था और उस अंडे के ऊपर कुछ अल्फाज थे, वो मैं लिखता था और लिखने के बाद उस अंडे को मैं आग में फेंक देता था, ठीक है, ये काम मैं करता था। तो एक दिन मैं ऐसे करता रहा 13 दिन का वो अमल था। तो 10-11 दिन के बाद जैसे ही वो मैंने अंडा आग में फेंका तो एकदम से आग आई, उस आग भी बुलंद हुई और दूसरा कि क्या हुआ कि ना एक धमाका हुआ, ज़ोरदार एक धमाका हुआ। जब एक ज़ोरदार धमाका हुआ तो क्या मैंने देखा कि उस धमाके होने से मेरी जो है ना अचानक से मैं यूं हुआ और मैं हिला, अचानक से चौंका और फिर उसके बाद मैं वजीफ़ा ख़त्म करके घर आ गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मुझे 104 पे बुखार हो गया। अब वो बुखार दिन में इतना शदीद हुआ कि मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टरों ने मुझे पट्टियाँ की, मुझे पानी से नहलाया और एट द एंड ये हुआ कि उस शख्स का जो ब्रेन था, दिमाग, बुखार वो ब्रेन पर इफ़ेक्ट कर गया और अब उसको चीज़ें भूल गई, वो बहुत सारी चीज़ें भूल गया। अब वो तरह तरह की अजीबो गरीब हरकतें करता है। कभी वो शापर उठा के फिर रहा होता है, कभी वो बोतलें चुन रहा होता है, यानी उसका ज़हनी तवाज़ुन जो था वो ख़त्म हो गया। बुखार ने उसके ब्रेन पे इफ़ेक्ट किया। तो ये क्या थी? ये रजत थी, ठीक है। आप कभी भी इसकी एक तो वजह, एक तो मैंने बताई कि बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर इज़न के, बग़ैर किसी कामिल की देख रेख में, बग़ैर किसी कामिल शेख से जुड़े हुए, बग़ैर नफ्स अमारा को मारे हुए, बग़ैर गंदी चीज़ों, गंदी दुनिया और गलत चीज़ों को छोड़े हुए हम लोग उन ख़ास लोगों के वज़ाइफ करना शुरू हो जाते हैं कि जो वज़ाइफ हमें रजत देते हैं। अब लोग कहते हैं कुरान तो शिफा है, कुरान कैसे नुकसान दे सकता है? भाई कुरान पढ़ना बरकत है, शिफा है, रहमत है, लेकिन कुरान को किसी ख़ास मकसद के लिए पढ़ना और फिर उसमें जिन्नात को बुलाने की दुहाई देना कुरान की कि तुम हर हाल में आओ, तुम्हें
दुहाई इसमें आज़म, दुहाई बेहक के, यानी इन अल्फाजों का यूज़ करना कि तुम आओ, तुम्हें इन आयात का वास्ता है, तुम लाजमी हमारे पास आओ। तो फिर वो जब वो चीज़ें आती हैं और इंसान का जिस्म उन चीज़ों को देखने के लिए, इंसान की बॉडी रेडी नहीं होती, इंसान का वजूद उसके लिए तैयार नहीं होता, तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट रिज्जत या रजत की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। रजत जो है उससे बचने के लिए लोग तरह तरह के वज़ाइफ करते हैं। अच्छा, फिर एक पहले उन्होंने वजीफा किया जिन को काबू करने के लिए, फिर रजत हुई, नुकसान हुआ, फिर उस नुकसान से बचने के लिए उन्होंने और वजीफा ले लिया। ठीक है, तो खुदारा आप ऐसी चीज़ों से बचें। पहली बात कि रजत जो होती है उसके लिए आप लाजमी तौर पर अपना हसार करें। आपका हसार मजबूत होना चाहिए। आपके सुबह और शाम के अज़कार उसमें कहीं कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके पास एक छोटी सी डायरी रहनी चाहिए जिसमें आप साइन करते रहें, ताकि आपको पता चलता रहे, आपको फील होता रहे कि आप जो है ना सही कर रहे हैं, यानी आपका वजीफा सही जा रहा है या कि सही नहीं जा रहा। आपको लाजमी तौर पर उसका पता होना चाहिए। ठीक है, आपके यानी आपने आज जिक्र किया तो उसमें हाजिरी लगा दें, छोटा सा पी लिख दें, ठीक है, डब्बे बना के। इस तरीके से नज़्म व ज़ब्त भी होगा और आपको रजत का शिकार भी आप नहीं होंगे। एक हसार। दूसरा, आपने सदका करना है। तीसरा, आपको चाहिए कि आप वजीफ़ा किसी साहिब इजाज़त से लें, उस शख्स से वजीफ़ा करें जिसने खुद वो वजीफ़ा किया हो। उस शख्स से आपने वजीफ़ा लेकर करना है जिस शख्स ने खुद वो वजीफ़ा कर रखा हो, उससे आपने वजीफ़ा लेकर करना है, अदरवाइज आपने वजीफ़ा नहीं करना। समझ आ रही है मेरी बातें आपको? अब ये तो एहतियाती तदाबीर थी वज़ाइफ करने से पहले। अब अगर किसी शख्स ने वज़ाइफ की और वो रजत का शिकार हुआ, तो अब वो रजत से या रिजत से कैसे महफूज रहे, वो क्या करे? तो उसके लिए आपको चाहिए, उस शख्स को चाहिए कि वो बैठकर सबसे पहले अपना वज़न करें। आप अपना वज़न करें। आपका वज़न कितना होता है? जितना आपका वज़न है उतनी गंदम लेके ना, गंदम, उसको आप मसाकीन में, गरीबों में, मोहताजों में बांट दें और कोशिश करें कि वो जो है ना गंदम किसी एक ही शख्स को दें, ताकि उसके घर का कुछ दिन तक चूल्हा जलता रहे। ठीक है, इसके साथ एक तो ये चीज़। दूसरा, फिर आपने जितने आपके नाम के अदद हैं, जितने आपके नाम के अदद हैं, मिसाल के तौर पे किसी शख्स का नाम अहमद है, उसके अदद बनते हैं 53। तो 53 टाइम्स उसने अपने नाम को या लगाकर पढ़ना है, या अहमद बिलफर्ज अलिफ का 1, हा की कीमत 8, मीम की 40 और दाल की 4, तो ये मेरे ख्याल में 53 होते हैं। तो 53 बार उसने या अहमद, या अहमद, या अहमद, या अहमद पढ़ना है। ठीक है, या अहमद, या अहमद, या अहमद। ठीक है, अव्वल आखिर 7 बार दरूद पाक, फिर आपने अपने ही नाम को उतनी बार विर्द करना है जितने आपके नाम के अदद हैं। अदद आपने अबजद कमरी के एतबार से लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 313 बार इस वजीफे को करना है। या रहमानुद्दुनिया, या रहमानुद्दुनिया, या रहीमल आखिर, या रहमानुद्दुनिया, या रहीमल आखिर, बेहक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रहमानुद्दुनिया, या रहीमल आखिर, बेहक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वजीफे को आपने करना है। जब ये वजीफा आपने कर लेना है 313 बार, फिर आपने 100 बार पढ़नी है आयातुल कुर्सी की आखिरी आयत। फिर आपने अपने नाम के जो है ना, फिर आपने दरूद पाक पढ़ के इस वजीफे को ख़त्म कर देना है। यानी फर्स्ट पे 7 बार, ये 14 बार, 11 बार दरूद पढ़ना है, फिर अपने नाम के विर्द को करना है उतनी मिकदार में जितना आपके नाम के अदद हैं। फिर उसके बाद आपने, जैसे मैंने ये टोटल आपको तरतीब बताई है, तो फिर आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही आपने इस अजीमत को आपने 313 बार जैसे मैंने आपको बताया है ये आपने करनी है। और उसके बाद फिर 7 बार, 3 बार, 11 बार दरूद पाक पढ़ के आपने अपने वजीफे को मुकम्मल कर लेना है। जब आप यूं अपने वजीफे को कंप्लीट कर लेंगे, तो कंप्लीट करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने अल्लाह के हुजूर दुआ मांगनी है उस रिज्जत से निजात के लिए, और पानी के ऊपर और खुशबू के ऊपर इस वजीफे को दम कर लेना है। और वो खुशबू भी आपने कोशिश करनी है कि उसका बाकसरत आपने इस्तेमाल करना है, उस खुशबू का आपने
बाकसरत इस्तेमाल करना है। और उस पानी को भी जब भी आप पानी पिए उसी पानी को पिए, जब पूरा एक डोल भर के रख लें और उसमें दम कर लें, जब पानी पिए वही पानी पिए। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है कि वो पानी बोतल में भर के अपने साथ ले जाएं, ठीक है। जब पानी पीना है वही पानी पीना। और इसके साथ आपने 3 माह तक मुसलसल हर महीने की चांद की एतबार से 17, 19 और 21 तारीखों में आपने हिजामा भी लाजमी तौर पर करवाना है। तो इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा आप उतने दिन करें जितने आपके नाम के अदद बनते हैं। मिसाल के तौर पर अहमद के अदद बनते हैं 53, तो 53 टाइम दिन नहीं करना। 53 को जब हम मुरक्कब करेंगे, जमा करेंगे, 53 5 3 5 प्लस 3 5 और 3 को आपस में जमा करेंगे तो ये 8 बन जाएंगे। तो अहमद इस वजीफे को 8 दिन करेगा। इसी तरीके से किसी शख्स के नाम के अदद अगर बिलफर्ज बनते हैं 10 तो वो 10 दिन ही करेगा। किसी शख्स के नाम के अदद 9 बनते हैं तो वो 9 दिन ही करेगा, ठीक है। किसी शख्स के नाम के अदद अगर बिलफर्ज 101 बनते हैं तो वो 1 जमा 0 जमा 1 इनको आपस में करेगा तो ये बन जाएंगे जो है ना 11 बन जाएंगे, यानी 0 निकाल के 11 बन जाएंगे, तो 11 दिन करेगा, ठीक है। और अगर 1 जमा 1 करें 2 बनते हैं, लेकिन 2 दिन से ये वजीफा 2 दिन में तो नहीं काम करेगा, तो वो 2 दिन की बजाय 11 दिन कर ले, ठीक है। यानी आपने 10 से ऊपर या 10 दिन लाजमी इस वजीफे को करना है, ठीक है। तो ज़्यादा ये इफेक्टिव रहेगा। मेरी तरफ से इस वजीफे की आपको आम इजाज़त है, आप इसको करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको इसकी बरकतें रहमतें नज़र आएंगी। और आप ज़रा कोशिश कीजिएगा कि ये जो बकरी की सिरी, कलेजी, काले नीले पीले धागे, चौरस्ते की मट्टी, कब्रों की मट्टी और ये ऑल फॉल वज़ाइफ होते हैं अजीब व गरीब, ये अमाल शर वजीफ़े के अमाल शर वाले वज़ाइफ से बचा करें, क्योंकि इनकी रजत होती है और जो शख्स रजत में गिरफ्तार होता है फिर उसका कुछ भी नहीं बचता, वो तंग और परेशान हो जाता है। आप इस तरह के वज़ाइफ करने से पहले ज़रूर सोच लिया करें। और किसी भी ऐसे शख्स से, किसी भी अरे गहरे से, किसी भी आजकल हर शख्स ही सोशल मीडिया पर जो है ना बड़े बड़े वज़ाइफ बताने के दावे कर रहे हैं, तो ये अक्सर लोग बुकों से पढ़ के आपको वज़ाइफ बता रहे होते हैं, इन्होंने खुद वो वज़ाइफ नहीं किए होते। तो खुदारा आप किसी आमिल कामिल से कोई एक वजीफ़ा लें और उसी पर पूरी ज़िंदगी मेहनत करें, उसी से सारे काम होंगे। किसी एक चीज़ पर मेहनत करें। मैंने आपको आज तक सूरह इखलास के अलावा क्या पढ़ाया है? इतना अरसा हो गया आपका और मेरा, सिर्फ सूरह इखलास, फिर सूरह इखलास के इस्तेमालात, सूरह इखलास से वज़ाइफ, ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। तो आप कोशिश करें, मैंने आपको एक मिजाज दिया है कि कोशिश करें एक ही चीज़ अपनाएं, एक ही चीज़ पर मेहनत करें, फिर उस पर आप इतनी शदीद और तवील मेहनत करें कि उसकी तासीर आपकी ज़ुबान में पैदा हो जाए, फिर तासीर से असर पैदा होता है और असर से काम बनते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको तमाम तर चीज़ें समझा दी हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह आपको समझ की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।